वॉर। तो वॉर के बारे में हमने बहुत सारी बातें की। क्या तो कौन सी बात आपके ध्यान में आ रही है जो आपको पहले पता नहीं वॉर के बारे में? तो भाई आपको कुछ ध्यान में आ रहा है वॉर के बारे में? चालू है वो नहीं मालूम। बहुत नहीं मालूम, अभी मालूम पड़ गया। तो और क्या मालूम पड़ गया? मतलब आदमी लोग एकदम डर के माहौल में रह रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग डर के माहौल में रह रहे हैं, वो मालूम है, क्या भी मालूम पड़ गया। ओके, और आपको क्या मालूम पड़ गया? लिखा मैंने उषा में ना बताइए। પહેલા તો મને એમ જ થતું કે આજે આપણે ઓલું યુદ્ધ થાય ને ભારતમાં થાય ત્યારે પાકિસ્તાનમાં ના લેતા બે દેશના ખાતા હોય ઈ થતા હોય ને આવું કોણ એવું જ થતું હશે આટલું બધું નતું ખબર દીધું કે આવી રીતે પણ આંદોલન આમ ચાલતું જ હોય છે આપણને તો ખબર બી નથી કે ક્યાં યુદ્ધ ચાલે છે ક્યાં લોકો મરી જાય છે આવું બધું નથી ખબર અને દુનિયાની 25% પ્રજા એવા વાતાવરણમાં જીવે છે જ્યાં યુદ્ધના વાતાવરણ એટલે ત્યાં પાછું ચાલુ જ રહે છે અમુક ઠેકાણે એટલે આની તો ખબર જ નથી કે યુદ્ધ ચાલુ જ રહેતા હોય છે કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, ગુડ. તમને શું ખ્યાલ આવે યુદ્ધ, વોર, કોન્ફ્લિક્ટ? આ યુદ્ધ તો મેં જોયેલું છે કારણ કે હું આફ્રિકા બાજુ એડનમાં આવી છું. અચ્છા અચ્છા તો મેં રિયલ જોયેલું છે. અચ્છા, ત્યાં ગોળીબાર સિવિલ વોર એટલે કે અંદર અંદર જ લોકો. ગોળીબાર અચ્છા, રિયલ એ કયા યરમાં? 68 માં. બરાબર. ઓહો, મિડલ ઈસ્ટ. લાસ્ટ વાળાને નજરો નજર જોઈ છે. બિલ્ડિંગમાં મારી નાખી જાય. એટલે બે દેશો વચ્ચેની પણ દેશની અંદર જ અંદર ત્યાં બધા આફ્રિકન લોકો સોમાલિયા અંગ્રેજોની સામે એ લોકોએ ત્યાં ક્રાંતિ કરેલી. ત્યાં અંગ્રેજો સ્થાનક હતો ને એડનમાં. એટલે એની વિરુદ્ધ એ લોકોએ ક્રાંતિ કરી હતી ત્યાંના ક્રાંતિકારીઓએ. અને એમાં સિવિલ વોર બહુ મોટું હતું ત્યાં. ત્યારે ત્યાં જતા લોકો. ધીરુભાઈ અંબાણી ત્યારે એના પપ્પાના હાથ નીચે કામ કરતા હતા. अच्छा, मतलब पेट्रोल पंप पर काम करते थे। હા. अच्छा अच्छा હીરા નંદાનીનું જે પોર્ટ હતું ને, हाँ हाँ પોર્ટમાં જે હીરા નંદાનીનો ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર હતો, अच्छा એમાં આના પપ્પા મેનેજર હતા. अच्छा અને ધીરુભાઈ ત્યાં એના અંડરમાં કામ કરતા હતા. अरे वाह, पेट्रोल पंप पर करते रही मैं वांच्યું છે એની બુકમાં. હા, એ બરાબર છે. બસ તો તમે તો વોર પોતે જોયેલું છે. Okay, what are you getting, Dr. Lalka, through our discussion on war? જે કીધું એ બરોબર ખબર જ નહીં કે વર્લ્ડમાં તો આ વાત ચાલે આપણને લાગે હવે શાંતિ છે વર્લ્ડમાં સેકન્ડ સ્ટોપ થઈ ગયો આમ તો વચમાં ઈરાન પણ આટલું બધું આટલા લોકો મરે છે એન્ડ મેઇન આટલા લોકો દે આર લિવિંગ અંડર ધ થ્રેટ ઓફ વોર ક્યારે બી મરી શકે એ બી આશ્ચર્યની વાત લાગે અને વન મોર થિંગ કે આ આપણે કેવી રીતે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીશું that I realized કે અરે આપણે શાંત રહેવાથી પણ કાંઈ વાઇબ્રેશન ત્યાં પહોંચી જાય લોકોને ફરક પડે that is shocking કે હા તમે કોણ આપણે કેવી રીતે ઇમ્પેક્ટ કરી શકીએ તમે શાંતિના વાઇબ્રેશન્સ મોકલાવો તો કદાચ ધ ડિસિઝન મેકર ઓલ્સો ફોર ટાઈમ બિંગ એને માઇન્ડમાં ઇફેક્ટ પડી શકે અને બીજું નાના નાના વોર જે કોન્ફ્લિક્ટ ઘરોમાં પણ થાય છે એનામાં ઘણો ફરક પડે છે કે તમે પહેલા જે થાય છે તમે પોતે શાંત થઈ જાઓ તો ઓટોમેટિકલી વાતાવરણ તમે ઘરનું વાતાવરણ સારું કરી શકો. इनफैक्ट ऐसा स्टैटिस्टिक्स का रिसर्च है कि अगर दो कंट्री में वॉर हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान वॉर कर रहे हैं समझ लीजिए, तो वो कंट्री के लोग हैं ना, वो जो ज़्यादा सुसाइड करते थे
ज्यादा पागल होते थे वो कम होते थे, क्योंकि उनका जो वॉर का इंटरेस्ट है, जो डिजायर है कुछ करना है, झगड़ा करना है, उनको लगता है अभी हो रहा है, ऑलरेडी झगड़ा हो रहा है। अच्छा। तो उनका वो झगड़े की जो तमन्ना है वो मास लेवल पे हो रहा है। तो फिर बोले अभी इसके बीच से क्या झगड़ा करना, इतना बड़ा झगड़ा ऑलरेडी हो रहा है। तो लोग के अंदर जो एक ज्वाला है, झगड़ा करना, बस निकल पड़े झगड़ा करना। कल ही मुझे कोई बोल रहा था कि अभी ट्रेन में झगड़ा कम है, ट्रेन में लोग ट्रैवल करते हैं। पहले तो मैं बहुत टाइम से ट्रेन में बैठा नहीं, लेकिन पहले मैंने देखा था कि ट्रेन में लोग टच हो गया झगड़ा हो गया, एकदम झगड़ा झगड़ी हो गया। कल मुझे बोला किसी ने बहुत झगड़ा काम हो गया। बोला क्यों? बोला जितने भी लोग ट्रेन में होते हैं ना, सब लोग उसका ध्यान झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं, मोबाइल पे ही कर रहे झगड़ा, एसएमएस भेज रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल लगा के गेम खेल रहे झगड़े का, एंग्री बर्ड्स, ये वो हजार जात का मारामारी मोबाइल में कर रहे हैं, तो सैटिस्फाई हो गए, निकल गया उनका वो मन का भड़ास निकल गया। वो मोबाइल में जो सबसे पॉपुलर गेम है, बढ़िया है, आपको मालूम नहीं होगा गौतम भाई, उसका नाम है एंग्री बर्ड्स। एंग्री बर्ड्स। अच्छा। एंग्री बर्ड्स जो गेम रहता है ना, उसमें बर्ड्स का मारामारी करा, अच्छा। तो बस खुशी मिल गई, अच्छा। करा दिया है मारामारी। तो हम क्या सोचते हैं कि वो ज्यादा झगड़े का देखता है करता है तो उसकी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी, इसलिए हम बोलते नहीं तू ऐसे गेम्स मत खेल, दुश्मन दुश्मन मारामारी का। वो इसलिए बोलते हैं कि क्या होता है, चलो वो टेम्पररी तो भड़ास निकल गई, पर उनका जो वो क्या होता है कि इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न। कोई आदमी को समझो रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, तो एक बार रसगुल्ला खाए तो वो टेस्ट आएगा, फिर वापस दूसरा रसगुल्ला खाएगा ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो पहले रसगुल्ला में आया। तो एक ही चीज में जो आनंद मिल रहा है वो धीरे धीरे वही चीज में से आनंद कम हो जाता है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। जैसे दारू पीते ना लोग, तो पहली बार दारू पिया तो वो तो इंटरेस्ट आया, फिर दूसरी बार में नहीं आएगा, फिर दारू की क्वांटिटी जितनी बढ़ाएंगे उतना उनको वही इंटरेस्ट मिलता है। तो लोग क्या करते हैं कि ये वायलेंट गेम्स खेल रहे हैं, तो टेम्पररी तो उनका वो निकल गया, पर वो वायलेंट गेम और वायलेंट गेम चाहिए और चाहिए और चाहिए, फिर फाइनली क्या, फाइनली एक्चुअल कर रहे हो। So that's why people want to have to increase. What is problem with drugs? Drugs से प्रॉब्लम क्या है? मैरिजुआना होता है, हेरोइन होता है, जो लोग लेते हैं बहुत खुशी मिलती है, तो किसी से झगड़ा भी नहीं करेंगे, वो तो अपनी दुनिया में मस्त हो गए। पर वो जो आपको ड्रग्स में जो मस्ती मिलती है, आपको क्वांटिटी बढ़ाते ही जाना पड़ेगा, तो जितनी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उतना बॉडी के ऊपर असर हो रहा है, माइंड के ऊपर होता है, कुछ प्रोडक्टिव आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करना, ये प्रॉब्लम। अल्कोहल, ड्रग, ऑल काइंड ऑफ एडिक्शन, इवन द गेम्स। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? अभी हिमांगिनी बहन से मेरा बात हो रहा था लास्ट वेडनेसडे थर्सडे को आए थे। हम क्या चाहते हैं? हम खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आर्टिस्ट है, क्रिएटिव लोग हैं, क्या करना चाहते हैं? हम एक्सप्रेस, खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। हमारा प्यार है, हमारी खुशी है, हमारा आनंद है, हम बांटना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फिर क्या होता है? एक्सप्रेस कर नहीं पाते, फिर हम चले जाते हैं ड्रग, अल्कोहल, गेम, उसमें चले जाते हैं। और क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाए, सप्रेस हो गए, तो जितना सप्रेस हो गए इतना फिर वायलेंट बन जाता है। तो जो लोग बहुत एक्सप्रेसिव है वो जनरली वायलेंस में नहीं जाते, तो ऑलरेडी एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, खुशी बांट रहे हैं, गम बांट रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं। ये नहीं, yeah, Alka, what are you getting out of this war discussion that we had?
कि इतना सारा वॉर चल रहा है वो मालूम ही नहीं था। इसने बताया ना उस तरह के हम तो शांति में ही है, ऐसा कुछ अभी चल नहीं रहा है, है वो सबको ऐसे मैनेज कर रहा है, पर इतना हो रहा है वो मालूम हुआ। और मुझे लगता है कि जैसे फ्रंट पेज में, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में हेडलाइन रोज यही आनी चाहिए कि लोग रोज पढ़े ना तो अपना जो है वो कम हो जाए, जो अपना फेवरेट प्रोग्राम है या जो भी है, बात बोलते हैं अभी बोला ना कि अगर दूसरे लोग वॉर कर रहे हैं तो वो देश में शांति हो रहा है, जिसके अपना तो वो फ्रंट पेज में आना चाहिए रोज। करेक्ट। कि तो लोग को मालूम हो कि इतना हो रहा है दुनिया में, इतना अशांति है, इतना वॉर हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, तो हम तो शांति से बैठे या हम तो अपना जो भी है शांति से करें या जो भी कंट्रीब्यूशन कर सके वो करें। Okay. Probably to the war. Yeah, I'm very happy to see you. Had come earlier. Yes, I had come earlier. Yeah. I got message after a very long time. Thank you very much. What is your name? Bharat Jana. Huh? Bharat Jana. Bharat. Aiken Bhai. Ma'am. We are discussing on global challenges. Yes. It's almost now 3-4 months we're discussing on global challenges. We discussed challenges of water, basic facility. Now we're discussing war. Challenges of war. You want to say anything on? Oh yes. For me, war and conflict is something like dispute, something like misunderstanding, something like which we do not understand other person, other country, other culture, other religion, whatever. And as far as war and culture, war and conflict, I remember when I was a kid. I remember Hindu-Muslim riots in 92-93, and that was horrible. I mean, a lot of people have lost their life, and there is still a big gap between two religions. You know, we see each other in a different way. We see each other with a war. I mean, we like any Hindu will not see a Mohammedan in brotherhood. He will always see him as an enemy. So war and conflict, obviously it's not good for civil because in the history of human being, war and conflict have demolished countries, demolished culture, demolished humanization. And what I would like to suggest is there has to be peace. There has to be, if our neighbor country is fighting with us for a piece of land, why there is no confrontation, why there is no understanding, why there is no division, take your decisions. There has to be an end of war, but we are not, that self-explanation, the self-expression. Every country, every culture tries to express themselves that this belongs to us, this is ours, we belong to that, we are that. So that creates that disputes, that conflict creates war. That is not good for anyone, anybody. Correct. Very good. Thank you very much for your contribution. By the way, you want to say anything on the war? Okay. Yamani, you want to say anything on? I'm thinking how can we create awareness in common people? Okay. The disadvantages of war, but its effects in so many areas, like mentally also, creativity also, or disturbance. Okay, when we see others' problem, we forget our problem, like that. But the awareness अभी जो है ना कि this much is happening all over the world. This much is miss that that advantage. So yeah, this awareness, how can by political leaders or media or social associations are there, they should spread awareness. Yeah. Okay. जैसे बोला कि it should come on front line every day. Yeah. So common people get, but only the news will get. उसका कुछ मतलब नहीं होगा. उसकी advantage or disadvantage. Right. What we can do and what we are doing and what we are wasting time. That should get awareness and that should reach. Okay, got it. Thank you. And then we are also looking at, जैसे हम लोग विचार कर रहे हैं, वैसे दुनिया के सब जो लीडर्स हैं वो भी सोचते हैं कि वॉर हो क्यों नहीं, क्योंकि
क्योंकि अगर हमको ये मालूम पड़ा कि कॉज ऑफ वॉर क्या है तो उसको सॉल्व करेंगे तो वॉर बंद हो जाएगा। पहले लोगों को ये मालूम नहीं था कि बीमारी क्यों होती। पहले बहुत सारे अलग अलग लोग कल्पना में जीते थे कि बीमारी क्यों होती। पहले ये मेरी मम्मी गांव में रहती है तो मैं गांव में जब पैदा हुआ तो मैं मर जाने वाला था, पैदा होकर मर जाने वाला था। क्या मालूम मेरे को कुछ बीमारी हो गई, मैं मर ही जाने वाला था। तो वो टाइम तो कुछ नॉलेज था नहीं, गांव में डॉक्टर भी नहीं थे ज़्यादा। तो उन्होंने ये कहा कि गांव का जो आदमी झाड़ू निकालता है वो वो पूरा झाड़ू जो निकाला वो मेरे पे लगाया, बोला उससे जिंदा रह जाएगा। गांव का पूरा चलाया हुआ झाड़ू और मुझे पानी भी पिलाया, वो नहीं झाड़ू लगाया, मेरे को झाड़ू लगाया, गांव का झाड़ू, जिंदा रह गया। अभी मैं जिंदा हूँ तो कोई बोले अरे वाह जिंदा रहने का तो झाड़ू लगाओ, वो भी गांव में जाओ झाड़ू लगाओ। ये उनको किसने कहा था? ત્યારે પાછા વાળાનો જ હતો. नहीं पर તમને કીધું કોઈએ કે આ અમારા બધા વડીલો જ હતા ઘરમાં, મારા ભાઈના કોઈ, બાપુજીના કોઈ. એ લોકોએ તમને કીધું કે મને નહીં, એ લોકોએ જ કર્યું આ બધું. એ લોકોએ જ કર્યું. अच्छा इन लोग के घर में कोई ऐसे सन नहीं था, पैदा नहीं होता था, बहुत साल हो गए सन पैदा ही नहीं। તો મારા 500 વર્ષમાં પહેલા એકદમ જ હતા. तो वो सब लड़की लोग ज्यादा थे, उनके फैमिली में लड़की ही पैदा, उधर वो घर में लड़की ही पैदा हो गई। અને છોકરાઓ મરી જ જતા હતા એટલે વેમ જ હતો. પણ મારી સાસુની તબિયત સારી નહોતી એટલે બધું મોકલી હતી ત્યાં. अभी कोई देखेगा कि अरे वाह ये तो तो डॉक्टर પાસે નો લઈ ગયા તમે? ડોક્ટર હતા ને, એક બોલાવ્યો તો ડોક્ટર. નાનું ગામ. હાઉ 5 વાનો 6 વાનો જતી જતી. ચોરવા ને ना ना दामदर દામનગર સૌરાષ્ટ્ર. एमना पियर में गए। हमारे पापा तो पहला मुंबई रहता था, अच्छा पर वो गए हमारे गांव में, मतलब मेरा जो डिलीवरी हो गया वो उधर हो गया। और एक डॉक्टर था कोई जूना, कौन સેદાની. ये आवेला, એ બેઠા હતા, આખી રાત બેઠા હતા. हां भाई वो મારા बोला ભાઈએ, મારા બાપુજીએ જોબ કર્યા એટલે એમ કે એના સસરાનું પૂરું નહીં પડે તો સાસરીવાળાનું. अच्छा अभी समझ लीजिए, अभी जो एविडेंस है इधर जहाँ पे डॉक्टर बैठे थे उनसे भी मैं रिपेयर नहीं हुआ और मैं झाड़ू से रिपेयर हो गया। तो रिपेयर भी हो गया, ठीक ठाक हुआ अभी। तो ये हो सकता है कि भाई अगर रोग हटाना है तो गांव में झाड़ू निकालो, झाड़ू सर पे लगाओ। तो पहले कल्पना नहीं और कुछ ना कुछ चल जाता था, चल भी गया ना मेरे केस में, तो कुछ ना कुछ चल जाता था। तो लोग सोचते थे ये डिजीज का कॉज ये, माता जी को ये करो, फलाना करो, भोग धराओ, ये करो, वो करो, कुछ नजर लगी है ये उतारो वो। तो मैं तो कभी सोचता हूँ कोई स्विट्जरलैंड में किसी को नजर नहीं लगती, यूरोप में, जापान में, चाइना, अमेरिका में, कनाडा में, इधर किसी को नजर नहीं लगती। हमारे यहाँ पे नजर तुरंत लग जाती है। तो ऐसे बहुत थियरी। फिर एक साइंटिस्ट ने डिजीज के लिए एक थियरी समझा, उसको बोलते हैं जर्म थियरी ऑफ डिजीज। जर्म थियरी ऑफ डिजीज मतलब जो भी डिजीज होते हैं वो बैक्टीरिया से, कॉजेज ऑफ डिजीज वो उन्होंने ढूंढ लिया जर्म थियरी। जो आदमी ने जर्म थियरी ढूंढ लिया, ही इज द फाउंडर ऑफ मेडिकल साइंस। क्योंकि एक बार मालूम पड़ गया कि बैक्टीरिया से हो रहे हैं, तो बैक्टीरिया को हटा देंगे तो डिजीज नहीं होगी। तो मेन कॉज ये, इसलिए फिर वैक्सीन डेवलप हो गए, और वैक्सीन डेवलप हो गए तो आदमी देखो अभी बच्चे बढ़ते नहीं है, पहले बच्चे बहुत बढ़ जाते थे। ये है अपना कॉजेज ऑफ डिजीज। एक्चुअल कॉजेज ऑफ डिजीज क्या है? तो अभी आप ये देखिए कॉजेज ऑफ वॉर क्या है।
आज का हमारा सेशन ये कॉजेज ऑफ वॉर क्या है? गौतम भाई आप क्या कहेंगे? कॉजेज ऑफ वॉर, कारण क्या है? कॉजेज ऑफ वॉर में कुछ बातें ऐसी होती है कि किसी का घमंड, कि जैसे हिटलर ने ये कहा कि जर्मन लोग आर्य है और आर्य लोग ही देश को, दुनिया को राज करने के लायक है, बाकी की कोई जनता नहीं। करेक्ट। और उसके लिए वॉर होना चाहिए, जीतना चाहिए हम लोगों ने पूरी दुनिया को। तो वो उसने एक वॉर करवा दिया। ओके। उसके पहले सिकंदर ने एक बात सोचा कि मुझे दुनिया जीतनी है और मैं दुनिया को जीत लूंगा और पूरी दुनिया में मेरा ही राज होना चाहिए। वो सोच के उसने वॉर किए 2000 साल पहले। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ये कारण होते हैं वॉर के। गौतम बुद्ध ने एक अलग रास्ता निकाला था। जब कोलाई और शाक्य लोगों के बीच में नदी के पानी के बारे में युद्ध होते थे, तो उस युद्ध को मिटाने के लिए बार बार प्रयत्न होते थे और फिर भी बार बार युद्ध होते थे। और गौतम बुद्ध, मैं थोड़ी बात को लंबी करूंगा, गौतम बुद्ध के ऊपर ये प्रेशर आया कि वो अभी राजा होने वाला था, राजकुमार था और अभी राजा होने का था उसको। और तब ये बात चर्चा हुई कि भाई ये इनके खिलाफ अपने को लड़ना है, क्योंकि वो लोग हमारी नदी का पानी बहा लेते हैं और हमारे ऊपर वो नदी का पानी डाल देते हैं ताकि हम लोग अच्छी तरह से खेती बाड़ी और ये नहीं कर सकते। तो बार बार ये लड़ाइयाँ होती है। अब एक और ऐसी लड़ाई करो कि उनको खत्म ही कर दो पूरी जनता को, तो फिर ये नदी का प्रॉब्लम ही हमको नहीं आएगा। बहुत भी उनकी आपस में चर्चा हुई घर में, उनकी जात वालों में, वंश वालों में, कि लड़ना ही है। तो उस समय उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं लड़ना है अपने को, उनके साथ हम मीटिंग करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उनके राजा के जो दूसरे बेटे थे, चाचा के लड़के वगैरह, देवव्रत वगैरह, उन्होंने कहा कि नहीं, ये नामर्द आदमी है, इसमें मरता ही नहीं है, ये लड़ना ही नहीं जानता है, तो ये राजा होने के लायक नहीं है, इसलिए इसको भगाओ। ये लड़ना नहीं जानता और लड़ने देना भी नहीं चाहता। एक ही रास्ता है, लड़ो और उनको जीत लो। गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये बात मुझे मंजूर नहीं, ये गलत है। बहुत चर्चा होने के बाद कहा कि अगर तुमको लड़ना नहीं है तो संन्यास ले लो। उस जमाने में वैसा एक रिवाज था वहाँ कि अगर राजा का बेटा राजा बनने को लायक नहीं है तो उसे संन्यास लेना चाहिए, वन में चला जाना चाहिए। बोले तुम संन्यास ले लो। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, लड़ाई मेरे कारण होने वाली है और नहीं होने वाली है तो मैं संन्यास लेता हूँ, लेकिन लड़ना मुझे मंजूर नहीं। और उन्होंने वो लड़ाई मंजूर नहीं की, छोड़ दिया राजपाट। फिर जो उसका भाई आया, राजा बन गया, उसको राजा बनाने के बाद उसने भी यही बात सोची कि मैं लड़ूंगा तो उनको भी लगेगा, मुझे भी लड़ेगा। उसने समाधान कर लिया। लेकिन वो घमंड था उसका, देवव्रत का, कि उसको कैसा भी करके बुद्ध को लड़ाना था या खुद को राजा होना था। तो घमंड के हिसाब से, घमंड के हिसाब से भी कभी कभी युद्ध होते कराते हैं लोग, उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी। आपके हिसाब से? मतलब मैं राइट हूँ और ये सामने वाला रॉन्ग है, वो हिसाब से हो सकता है कि मेरी धर्म सही है, बाकी सब धर्म नहीं। ये जो एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है, मैं उसकी बात करूँ, ये स्कॉलर हैं, इन्होंने जो रिसर्च किया है, कोई बुक लिखी है उन्होंने, स्टैटिस्टिक्स ऑन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने बताया है कि वॉर के कारण क्या है और जो सबसे बड़ा कारण दिखाया वॉर का, आपको शायद ये हमें जान के अजूब होगा। वॉर का कारण क्या है? ये लिखा है वॉर का कारण,
ये वॉर का कारण क्या है? Asymmetrical information on cost and benefit of war. इसका मतलब ये है कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट इसके लिए होते हैं कि हमको, और जो वॉर कर रहा है या कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उनको वो कॉन्फ्लिक्ट और वॉर का जो कॉस्ट होगा, जो कीमत चुकानी पड़ेगी और जो बेनिफिट मिल रहा है उसके बारे में जो पता है, जो इंफॉर्मेशन है वो गलत, इनएक्यूरेट, एसिमेट्रिकल, मतलब वॉर का परिणाम नहीं मालूम। नहीं, परिणाम तो मालूम है, पर देखिए कोई भी आप वॉर कर रहे हैं, आप या तो एक दो कंट्री वॉर कर रहे हैं या दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं, हर एक झगड़े में आपको मालूम है कॉस्ट क्या देनी पड़ेगी और आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, सबको मालूम है। अब कुछ किसी झगड़ा करने जाएंगे तो आपको मालूम है मेरे को ये कॉस्ट मिलेगा, ये मेरा बेनिफिट है, पर आपको जो मालूम है वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल मतलब गलत मालूम है या इनएक्यूरेट मालूम है, आपको पूरा पता नहीं, ठीक पता नहीं कि ये वॉर का कॉस्ट क्या है और उसका बेनिफिट, पूरी बात नहीं, आधी मालूम, या ऐसे कहे कि एक तरफा मालूम। तो ये हेमांगी मैंने कहा ना कि अवेयरनेस नहीं है, मतलब कि जब वॉर में लोग जाते हैं तब उनको ये पता नहीं है कि मुझे एक्चुअल कॉस्ट कितना लगेगा और मेरा एक्चुअल बेनिफिट कितना, पता होता है पर इनएक्यूरेट, क्योंकि आदमी कैसा है, स्वार्थी, पता मालूम है एकदम स्वार्थी, हम सब स्वार्थी। तो कब हम काम करेंगे, जब बेनिफिट ज्यादा होगा। तो 26 जनवरी को बिग बाजार में इतना रश होता है, इतना रश होता है, चलने की जगह, क्यों? बेनिफिट ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम दो, बेनिफिट ज्यादा, कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है, तो हम दौड़ेंगे। कॉस्ट ज्यादा है, कल को बिग बाजार ने बोल दिया कि लक्स का साबुन ऐसे 10 रुपए में मिलते हैं, आपको 30 रुपए बेचेंगे, तो कोई नहीं जाएगा। कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो छोड़ो, बात ही खत्म, कोई उसको सोचेगा भी नहीं, तो बात ही खत्म। तो कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज्यादा है तो ही हम एक्शन लेंगे, लेकिन हमारी जो समझ है वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में, वो समझ हमारी इनएक्यूरेट। तो ये बात इन्होंने कही, ये जो ऑथर है इन्होंने कहा। तो अगर हमारी समझ पूरा का पूरा ख्याल में आ गया, कॉस्ट और बेनिफिट का पूरा रेशियो का ख्याल में आ गया, तो कोई आदमी कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करेगा, वॉर भी नहीं करेगा। उतना ही नहीं, हम जो हमारे घरों में झगड़ा करते हैं, दूसरे से झगड़ा करते हैं, वो भी क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम सोचते हैं कि कॉस्ट हम कम दे रहे हैं और बेनिफिट ज्यादा है। और कॉन्फ्लिक्ट का अगर मैं बात कहूं या वॉर का बात कहूं, तो जनरली हमको बेनिफिट जो होता है ना, वो दिख जाता है, तुरंत दिखता है। किसी पे दादागिरी किया और किसी को झुका दिया, बेनिफिट दिख गया है तो भाई मैं ग्रेट हूं, वो मालूम पड़ गया। तो बेनिफिट तो हमको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि भाई मेरा बेनिफिट ये है कि भाई मैंने दादागिरी किसी का टॉलरेट नहीं किया, मैं ऐसा आदमी हूं किसी का दादागिरी टॉलरेट करता ही नहीं। हाँ, ये बेनिफिट तुरंत मालूम पड़ जाता है, लेकिन कॉस्ट मालूम नहीं पड़ती। जर्मनी ने और जापान ने वॉर किया, तब उनको लगा कि हम जीत रहे हैं,
हमारा बेनिफिट हो रहा है, तो उनको ये ध्यान में नहीं आया कि हमको क्या कॉस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि जो हार जाते हैं वो कभी ना कभी बदला लेते हैं। अब किसी को हरा ही नहीं पाते। ये दुनिया में नामुमकिन है किसी को हराना, क्योंकि एक बार आपने किसी को हरा दिया, वो क्या करने वाला है? बदला लेगा ना। वो तो शांति से बैठेगा, बैठ गया, बैठने वाला है। वो बोलेगा मेरे को थोड़ा अभी मेरा स्ट्रेंथ डेवलप करने में, ताकत डेवलप करने में, फिर मैं देखता हूँ। इसलिए जो लोग बच्चों को जरा दादागिरी करते हैं, और वो दादागिरी होगी। 18 साल होने दो उनको। इन सब चीजों के पीछे यही है ना, इंसान के मन में कहीं ना कहीं, चाहे वो कम्युनिटी लीडर्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, आम इंसान हो या कोई भी ऐसा बड़ा इंसान हो, उनके माइंड में यही थॉट है, वी कैन सर्वाइव इफ वी कंट्रोल पीपल एंड इफ वी रूल पीपल, अदरवाइज इसको मिटा दो, खत्म करो, तो ही हम जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक ईगो ही है ना कि क्यों दूसरा राइट नहीं हो सकता, मैं ही राइट हूँ, तो इफ आई कैन कंट्रोल, तो ही वो मेरे सामने नहीं बोल रहा, तो ही मेरी बात होगी। ये थॉट जो घर के लेवल पे, कंपनी के लेवल पे, देश के लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे सब में है। और एक मालूम नहीं है वॉर से ही खत्म। अभी हम लोग वो सीरियल देखेंगे ना पूरे महाराणा प्रताप और सब में, तो वो लड़ाई करने जाएंगे ना, तो वो पीछे वाला भाला लेके और ऐसे लेके ऐसे खड़ा है, लल्लू जैसा सैनिक, वो पीछे खड़ा है, उसको भी मारना ही नहीं, उसको मालूम नहीं आगे क्या है क्यों है। एक ही होता है कि वो राजा खराब है, तो उसको पकड़ लो। इतने लोगों को क्यों काटते हो, मारते हो? कितना नुकसान होता है। तब से ही चालू ही है ये प्रथा। 3600 साल का रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हाँ, अभी पहले खाली तलवार से ऐसे हो रहा था, अभी तो ये बहुत सारे वेपन्स आ गए। तो कहीं ना वही थोड़े ना, टू कंट्रोल एंड रूल, तो वो ईगो ही है उसके पीछे, और ये तो लैक ऑफ नॉलेज ही है ना। हाँ, लेकिन देखिए, कंट्रोल और रूल करना है। एक विल डूरा ने एक किताब लिखी, द विल टू पावर, एक ऐसी किताब लिखी, द विल टू पावर। बहुत लोगों को ऐसे वो होता है कि मैं लोगों के ऊपर कंट्रोल करूं। कैसे कर सकते हैं आप कंट्रोल? आप लोगों को अगर कंट्रोल करना है तो कैसे कर सकते हैं? प्यार से, प्रयास, हाँ, मोहब्बत से। क्योंकि आप कोई दूसरे भी लोगों को कंट्रोल करने जाएंगे, वो एक बार तो आपको मान लेगा, पर आपने उनको जितना दबाएंगे वो तो एक स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं ना, स्प्रिंग जैसा है। हाँ। तो ये जो कल्चर्स में, हमारे कल्चर में, हमारे नेशंस में, जब तक ये भावना है कि हम फोर्स से दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो ऐसे मैनेजमेंट में भी क्या सिखाते हैं, जो मैनेजमेंट थियरी है ना, कि अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में है, तो लीडरशिप पोजीशन में पावर है। कौन सा पावर है लीडरशिप पोजीशन में? आप बताइए, आपके बॉस होते हैं, उनके पास कौन सा पावर है? सारा पास देने का और लेने का, पनिश करने का और रिवॉर्ड देने, दो ही पावर होते हैं ना। या तो आपको पनिश कर सकता है, आपका प्रमोशन रोक सकता है, या रिवॉर्ड कर सकता है, पैसा ज्यादा दे सकता है, या बोनस दे सकता है, या सैलरी बढ़ा, प्रमोशन दे सकते हैं। तो जब भी कुछ काम करवाने के लिए आपने ये पावर यूज किया, तो यू आर नॉट एबल टू। This is the leading management science. तो आपके पास पावर है कि आप या तो लोगों को थ्रेट करो, पनिश करो। हर एक जगह में आपके पास पावर है। अगर आप कोई लीडरशिप रोल में है तो आपके पास ये पावर है, या तो लोगों को डराओ, आप उसको पनिश करो, या उनको रिवॉर्ड दो, कुछ दो, तो ही काम करेंगे ना लोग। नहीं तो क्यों करेंगे काम? क्यों करेंगे काम? नहीं करेंगे। ये अभी मैनेजमेंट ऐसा है कि अगर आपने पावर यूज किया तो देन यू आर नॉट ए गुड लीडर। जब आपको कुछ काम आप चाहते हैं कि हो जाए और आपने बोला ये नहीं हुआ तो ये मेरा पनिशमेंट, अगर किया तो ये तुझे मिलेगा।
तो यू आर नॉट एग्री। क्यों? ऐसा क्यों? तो क्यों करेंगे फिर लोग काम? पनिशमेंट भी नहीं है और रिवॉर्ड भी नहीं है, तो काम क्यों करें? मतलब पावर यूज ही नहीं किया आपने। आप मुझे बताओ क्यों करेंगे? तो तुम लीडर हो, किसी ने काम नहीं किया तुम उसको पनिश भी नहीं कर रहे हो, काम किया कोई रिवॉर्ड भी नहीं है, तो करेंगे क्यों? इसके ऊपर डिपेंड्स है। हाँ? डिपेंड्स है कोई भी पर्सन। हाँ, पर्सन डिपेंड ऑन पर्सन, पर उसका क्या Because they respect their boss and love their boss, then they will do the work. ओके, they respect the boss and love the boss. और भी है कि काम करवाने के दो भी और भी तरीके हैं, not only punishment. He might motivate the person who does good work. Yeah. You are not using the power. You have the power, but you cannot use the power. He is motivating. No, it's kind of power for the other person to work more. Yeah, The person motivating- is not working. He will inspire. He'll inspire that person. See. Okay. So you can inspire and Or motivate. explanation also work, or attention also work. Okay. Find out the reason why it's not working, and without punishing you can solve that problem. Okay. Okay. Only punishment or reward is not the solution of every problem. There is a midway, like you can find out. What is the midway? Then we are You looking can at that. inspire the person or you can help the person who is not able to. अगर कोई बच्चा कम पढ़ता है, दो बच्चे माँ के, एक अच्छा पढ़ता है एक नहीं पढ़ता है, तो of course yes, the mother will take care of the person who is not studying properly. Yeah. The boy, he will sit with that person, give more time, will find out what is the reason, and we can find out the solution. Okay. Okay, great. Yeah. आप बताओ। न तो आप पावर यूज कर सकते हैं, न तो आप थ्रेट यूज कर सकते हैं, न डरा सकते हैं, न आप ललचा सकते हैं। How would you then? You are a leader. How would you get the job done? लीडर है तो आपको कुछ काम करना है, आपको कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, न तो डरा सकते हैं, न किसी को धमकी दे सकते हैं। कैसे करेंगे? उनको प्यार से उनकी क्या समस्या है, काम नहीं कर रहा है, वो समस्या को जानना पड़ेगा। Okay. लीडर ने ये क्यों इस तरह से कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है, उसकी समस्या क्या, प्रॉब्लम क्या है, वो उसको प्यार से पूछ के या उसके और लोगों से कुछ जानकारी पाकर उसको समझाना चाहिए या उसकी समस्या दूर करने के लिए इसके साथ हाथ मिलाना चाहिए, बात करनी चाहिए कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम डरो मत, तुम्हारा ये प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारा लीडर हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो और ये काम कर दो, तो हो सकता है कि वो अच्छी तरह से काम Kind of motivation is talking about. Okay. Motivate. Another thing, I have worked 9 years I've been in service. I've seen very different types of boss. See, one type of boss will be when the management gives him some function, he will call everybody and he will assign him the work. We have to do this. This is a new task which has come from the management. All of us have to do this. You come on the Saturday. Saturday जब आना होता था तो she Saturday बुला दिया काम पे. So like that ऊपर से order आ जाता है. And then when you argue ऊपर से नहीं top management है आपको करने का ही है. No arguments. Nothing. Those Saturdays you have to come. This and next. And you don't listen to the lower level. Another way of doing that is sit with the employees. If this work has come, this is work with the management wants us to do. Explain why it is important for the company. Take the view of the employees कि what alternative can be done instead of coming for the Saturdays. Yeah. अगर कुछ नहीं है तो please come on Saturdays request करके वो लोग से काम नहीं करो. See, there are two ways of doing that work. Yeah. So if you go by the second way, तो employee भी बुरा नहीं मानेगा. अच्छा बेचारा हमारा boss को भी लग रहा है कि यार इसको wasting our Saturday काम करने जाना. Brilliant बोला सारा भाई, बहुत brilliant बोला. एक मिनट बोलो. बहुत उनके ऑफिस में बहुत बोलते थे शनिवार को आने के, शनिवार को छुट्टी रहता है. एडमिनिस्ट्रेटर मैं बोल देगा शनिवार को आ जा, कुछ नहीं आ जाना, टॉप मैनेजमेंट का ऑर्डर. और ये कह रहे हैं ऐसे बोलना चाहिए साथ में बैठ के कि भाई देखो ये कंपनी का प्रॉब्लम है, ऐसे करना है, शांति से समझाओ, Team प्यार work. से करके. ऐसा हर तो ऐसे बॉस को भी कि हम लोगों को सैटरडे आना हो तो the employees will not feel that bad. खुशी खुशी हाँ खुशी मिल जाएगी. देख हमारा बॉस को भी कंसर्न है. बहुत बढ़िया बोल रहे हैं सागर भाई, चौबंदी जैसी बात बोल रहे हैं. explanation and attention. हाँ ठीक है. अभी समझना है, ध्यान से सुनना. ये
उनके बॉस के हाथ में पावर है तो उनके बॉस को क्या करना चाहिए ये उनको मालूम है। आपके भी हाथ में कुछ पावर है घर में आप ऐसे करते हैं शादी से बैठ आपको जब करना है हमको लगता है ये नहीं रूल अच्छा बना है कि बॉस के हाथ में पावर उसको क्या करना चाहिए। तुम्हारे हाथ में पावर आता है पावर उसके हाथ में है जो खुद काम करता हो घर में। हमको देखना ये है देखो इमीडिएटली हम सोचते हैं बॉस को ये करना चाहिए उसके हाथ में पावर। जब तुम्हारे हाथ में पावर आता है तुम क्या करते हो। कोई चीजें में तो आपके हाथ में भी पावर है ना। अभी सोचेंगे ना, ये सोचेंगे। अभी सोचेंगे क्योंकि सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये तो बोल ही नहीं सकते ना। दूसरा को पूछेंगे। हाँ कि भाई हाँ कि आप कैसे करना है, ये करना है क्या? अपने वाइफ को पूछे अभी आपके घर का पावर आप बोलो देख मेरी इच्छा ये है कि ये करे अभी तू क्या बोले वो बोले ये नहीं करना है नहीं करना ठीक है नो देखो सुन लिया नहीं he just discussed this point and he came up मैंने थोड़ी है इन्होंने बोला जब आपके हाथ में पावर है तो डिक्टेट मत करो शांति से बैठ के एक्सप्लेन करो बात करो ऐसे क्यों बॉस को करते हो। तो जब हमारे हाथ में पावर नहीं है तो हमको एग्जैक्टली मालूम है कि जिनके हाथ में पावर है उनको क्या क्या करना चाहिए उनकी गलती क्या हो रही है। आपके हाथ में पावर है आप कर रहे क्या हो इतना तो करो क्योंकि दुनिया को आप कैसे वो कर सकते हैं आपसे तो चालू करो आपके हाथ में पावर है आप मत यूज करो थ्रेट आप मत करो आप प्यार से करो देख किसी को बोलो भी मत कि मेरे हाथ में पावर है आपको मालूम है कि आपके हाथ में पावर है करेक्ट बोलो भी मत कि मेरे हाथ में पावर है दिखाओ भी मत बोलो भी क्यों अपने आप काम अच्छी तरह से होने लगे शांति से बात करो देखो अपना ये प्रॉब्लम है चलो बैठ के बात करते हैं। फिर बात ही बेमानी हो गई ना पावर की तो ये पनिशमेंट भी नहीं करेंगे और रिवॉर्ड भी नहीं देंगे या उनको कोई लालच भी नहीं देंगे तो लोग क्यों काम करेंगे। तो न्यूरोसाइंस क्या बोलता है अभी वॉर के लिए बहुत सारा लोगों को लीडर्स को वर्ल्ड लीडर्स को ये देखना पड़ेगा कि दिमाग हमारा कैसे चलता है। बेटा we got the brain and we have to start looking at how the brain works because if we know how the brain works there is some possibility that we will reduce the conflict and the war। ये अपना जो अंदर है ना दिमाग का स्ट्रक्चर उसका वर्किंग कैसे हो रहा है वो मालूम पड़ा तो वॉर कम हो। तो क्या बोलते हैं जो न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट हैं कि हमारा जो दिमाग है वो 5 अवस्था में रह सकता है। ये जैसे ट्यूबलाइट होती है ना स्विच होती है ना ये स्विच वो कितनी अवस्था में रह सकती है कि चालू या बंद ऑन या ऑफ 2 स्टेट ऑन या ऑफ। गैस कितना उसमें रह सकता है ऑन या ऑफ ठीक है। गीजर कैसा ऑन या ऑफ। तो दिमाग है ना 5 स्टेट में रह सकता है। पहला स्टेट है विजन। अगर आपके पास विजन है बॉस के पास विजन है कंपनी के पास विजन है आपके हाथ में पावर है आपके हाथ में विजन है ये हम करने वाले हैं ये हमारा विजन। तो ये विजन में अगर हम रह रहे हैं जैसे आपने हमारे साकार ट्रस्ट में एक विजन रखा कि दुनिया में शांति हो जाए वर्ल्ड पीस। और एक दोस्त अभी मेरा गुरुवार को बात हो रहा था उन्होंने बोला आपका विजन क्या है मेरा विजन वर्ल्ड पीस दुनिया में शांति हो जाए। तो क्या करते हो तुम विजन ऐसा करते क्या हो। तो एक बार अपना विजन आ गया फिर दूसरा स्टेट है की प्लानिंग। ये आपका विजन है हो गया हमारा सबका विजन है वर्ल्ड पीस। भरत भाई ने बताया दुनिया में शांति हो जाए तो ये हमारा विजन है। क्या करेंगे एक प्लान बनाना पड़ेगा वर्ल्ड पीस सोच लिया प्लान तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग एम्पावर्ड करेंगे जो लोग शांति में जुटे हुए हैं
वैसे इंडिविजुअल्स को, लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसी संस्थाएं हैं, उनको एम्पावर करें। यह हमारा प्लान। क्योंकि अगर आप अशांति को एम्पावर कर रहे हैं तो दुनिया में अशांति बढ़ेगी। जब अमेरिका पे अटैक हुआ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, 9/11 अटैक हुआ, जॉर्ज बुश ने कहा, अमेरिका के प्रेसिडेंट, इस दुनिया में अभी दो ही टाइप के लोग। अच्छा, ये अटैक हो गया, आपको उससे कुछ कंसर्न है? नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, ये दुनिया में अभी दो ही लोग हैं, एक जो अमेरिका के साथ है और दूसरे जो अमेरिका के विरुद्ध। तो आप बोलेंगे मेरे को कंसर्न नहीं है, तो आप अमेरिका के विरुद्ध हो। ऐसे तीसरी कैटेगरी नहीं जो बोलेगा मुझे कंसर्न नहीं है। अगर आपने कहा उषा बेन कि अमेरिका पे अटैक हुआ, मुझे कोई कंसर्न नहीं, तो आप अमेरिका के दुश्मन, उनको क्या लेना देना, तो आप अमेरिका के दुश्मन। उन्होंने कहा जो लोग साइड में भी खड़े हैं ना, वो मेरे दुश्मन। बोला अभी दो ही कैटेगरी, मामला साफ करो, या तो आप हमारे साथ हो या आप साइड पे खड़े हो तो हमारे दुश्मन। तो दुनिया में आप शांति के लिए भी ऐसा ही, आप बोलो अशांति है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप अशांति के पक्ष में, मामला साफ करो। या तो आप शांति के पक्ष में खड़े हो, या तो आप बोलो अशांति और मैं क्या कर सकता हूं, तो फिर आप अशांति के पक्ष में, तो आप शांति के दुश्मन। करेक्ट। तो जो लोग एकदम सही शांति में जुटे हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम एम्पावर करेंगे। फिर आप बोल नहीं सकते एक वीडियो कर रहे हैं, करने दो ना, हमको कुछ लेना देना नहीं। नहीं, हमको लेना देना है, जो शांति के लिए खड़ा है हम उनको एम्पावर करेंगे। आप बोलेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये हमारा ब्रेन दूसरा स्टेप में आ जाएगा, वो है प्लानिंग। पहला हो गया विजन, फिर हो गया प्लान, फिर हो गया डिटेल्स। डिटेल्स मतलब अच्छा ठीक है, हमने सोचा कि हम एम्पावर करेंगे इंडिविजुअल्स को शांति के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर करेंगे। तो डिटेल्स क्या, तो फिर चलो संडे मॉर्निंग 10:30, 11:30, 10:30 से 12:30 1-2 घंटा लोग शांति से बैठ सके, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सबको SMS करेंगे, फोन करेंगे, आप आइए शांति से बैठिए, शांति की प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है और उनको कैसे एम्पावर किए जा सकता है। तो हम काफी ऐसे करीबन 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, उनको कैसी जरूरत है वो प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या चाहिए, वो कैसे एम्पावर होंगे कि वो अपना काम ठीक से कर पाए। तो ये हो गया विजन, प्लानिंग और डिटेल्स। तो अगर आप लीडरशिप रोल में है और आपका विजन है आपकी कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपका एंटरटेनमेंट ग्रुप के लिए, आपका प्रैक्टिस के लिए, और वो विजन में जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो विजन में आपके साथ खड़े हैं, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा मैं आपको पनिश करूंगा या मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, क्योंकि वो आपके साथ विजन तो आपके साथ इन दैट विजन। आपने घर में, आपको जो मेरे घर में बहुत झगड़ा है तो बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने एक विजन बना दिया कि मेरे घर में शांति हो, मेरे घर में प्यार हो। अभी आपका ब्रेन जो है ना, या तो विजन में होगा या प्लानिंग में होगा या डिटेल में, और दूसरे 2 स्टेट के थे। वो क्या है, एक है प्रॉब्लम। लोग चलते तो ऐसे ही है ना, शादी करके बस प्यार से रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर प्लान बनाते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है, ये कुछ होने वाला नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो नहीं होएगा। लोग बिजनेस करते हैं ऐसे विजन से करते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है, कैसे करेंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो नहीं हो जाएगा। स्टडीज करते हैं ना लोग, विजन होता है ना, ऐसा करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, then we make a plan, then we go into details, then we go into problems।
नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये समझता नहीं, वो समझता नहीं है, और फिर लास्ट ड्रामा, मेरे को नहीं करना है, ये मेरे ऐसा ड्रामा है, मेरे को कुछ पढ़ी ही नहीं है, नाटक में मुझे कुछ पढ़ी नहीं है, मुझे दुनिया के तेल लेने, मेरे को कुछ कोई सुनता नहीं है, मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं देता है, ये दुनिया में कुछ सच्चे लोगों की वो ही नहीं है, मुझे नहीं करना है, तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, मेरे को क्या पड़ी है, मैं क्यों बार बार करूं, ऐसा होता है। ज़्यादा फोकस इसमें ही रहता है, प्रॉब्लम में ड्रामा बताया ना, फिर एक्चुअली डिटेल्स के बाद क्या दो होना चाहिए, हाँ 5 स्टेट है, दिस 3 आर परफेक्ट, हाँ दिस विजन प्लानिंग एंड डिटेल्स, बाकी जो है प्रॉब्लम भी ठीक है आएंगे, बट लास्ट वाला जो ड्रामा है वहाँ पे सब कैंसिल हो जाए, तो उसके बदले में क्या होना चाहिए, Solution. नहीं सोल्यूशन एक्शन, आउटकम्स। देखिए ये ऑटोमेटिक हम जा रहे हैं, अच्छा ये ऑटोमेटिक हो रहा है, चलो आपको आइडेंटिफाई करना है अभी कौन से स्टेज में आ गए, अभी मेरा वो ब्रेन 3 तो आपने विजन के साथ वो अलग बताया, और ये तो आपने आउटकम बता दिए दोनों, नहीं प्रॉब्लम और ड्रामा। नहीं ये दोनों साथ में ही है, इसमें क्या होता है आपका ब्रेन जो है ना, बट वेयर इज द आउटकम फाइनली, व्हाट इज द आउटकम? ब्रेन जो है ना, ब्रेन जो है ना, इट कैन गो इनटू विजन और इट कैन गो टू प्लानिंग और इट कैन गो इनटू डिटेल्स और इट कैन गो इनटू ड्रामा और प्रॉब्लम्स। आउटकम विल कम इन रियलिटी, ब्रेन को आउटकम में नहीं जाना है, आउटकम तो विल हैपन इन रियलिटी। ओके, So it's happening internally, your brain would think about vision or would think about planning or would think about details or it would think about problems or it would think about drama. This is 5 state possible. अभी अगर ब्रेन ड्रामा में चला गया, अब तेज बोल रहा है कि मैं तो ड्रामा में रहता है, समझिए सबका ब्रेन ड्रामा में रहता है, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज लिविंग इन अ ड्रामा। ड्रामा देखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लोग ड्रामा में जी रहे हैं, ड्रामा चल ही रहा है, कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड पिक्चर देखने की जरूरत है, हम लोग ऑलरेडी ड्रामा कर रहे हैं। but the last 2 things comes when that first 3 things doesn't, जो सोचते वो होता नहीं, तब वो लास्ट 2 चीज आती है ना। तो अभी क्या है, एक अवेयरनेस आ गई कि मैं ड्रामा में जी रहा हूँ, ऑलरेडी आई एम इन ड्रामा, फिर आपको क्या करना है, वापस विजन रिक्रिएट करो, विजन रिक्रिएट, मेरा विजन है, बस करना है, फिर प्रॉब्लम में आ गए, नो प्रॉब्लम, वापस विजन रिक्रिएट करो। But that vision will be different than this vision. After problem and drama will be, vision will be different then. Now why it should be different? It is going to be different, little different, no? That modification will be there. मैंने ये सोच लिया है कि we want to create peace in world, ठीक है, ये हमारा विजन है, साकार ट्रस्ट का हमारा विजन है, वर्ल्ड पीस है, ठीक है, अभी कुछ भी होने दो, कितना भी कुछ होने दो, हम तो ऐसा हमारा विजन ये वर्ल्ड। हाँ, peace का vision है, your determination is like हाँ मुझे peace चाहिए, but after that problem you face and the drama you live in, then you change the way of going. हाँ, वो planning you may change the plan. Yeah, so everything will change. इसको ऊपर 3 वाले सब change हो जाएंगे। देखो विजन क्यों change? Vision रहेगा change, but planning and Detail will will change according to the situation. According to situation. Yes, according to your experience it will change. विजन, you have to recreate the vision. हम अगर चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो जाए, तो हम आप लोग सब चाहते हैं स्टेज, तो पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट, घर में जाके आप बोलेंगे देखो मेरा ये विजन कि पूरी दुनिया में शांति, पहले घर में शांति करना, नहीं तो इसलिए अभी से हमारे घर में शांति हो, फिर ड्रॉप साइलेंस, मेरे तरफ से तो कम से कम ऐसे नहीं, अरे मेरी तरफ से क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे चुप करते इसलिए प्रॉब्लम होती है। मेरे तरफ से बोलेंगे ना तो क्या बोल रहे हैं आप लोग, मतलब मैं शांत, मैं बहुत शांत हूँ और आप सब अशांत, ऐसे क्योंकि तुम्हारी तरफ से शांति हो गई और दूसरे लोग तरफ से नहीं हो गई तो कोई फायदा है क्या? मैं दूसरे लोगों को कैसे समझा सकता हूँ? अरे मेरे भगवान, मेरे भाई, तुम ऐसे मत बोलो कि दूसरे को समझाना है, दूसरे को समझाना कुछ नहीं, ये विजन है आपका, अपना विजन है, हम शांत हो गए,
हम ये हमारे घर में शांति होगी, ये विजन है। कोई ना बोलेगा कि नहीं करनी है शांति, कोई बोलेगा? आप अपने घर में जाके बोलो कि हमारे घर में बहुत प्यार होगा, बहुत शांति, आपको ना बोलेगा कोई? हाँ, बहुत बढ़िया बात, बहुत खुशी बात। आप उनको बोलो क्या रोज हम ये याद करें, ये याद रखें, ये हमारा विजन। इसके लिए तो घर में जमा हुए हैं। कुटुंब का मतलब क्या है कि हम घर में शांत, प्यार, आनंद करेंगे। ये बोल जब कोई भूल गया तो आप वापस याद करो, हमारा विजन है। भले अभी झगड़ा कर रहे लेकिन अपना विजन है, आप करते जाओ कभी तक शांति हो गई। तो विजन, आप कुछ भी हो जाए लेकिन आप ड्रामा में मत जाओ। अगर हमने ऐसा विजन सोच लिया भरत भाई कि हम ये दुनिया में वर्ल्ड पीस, फिर कुछ भी राइट हो गए, भले 10 करोड़ हिंदू है वो मुस्लिम को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते, या मुस्लिम लोग हिंदू को नहीं देते, हम नहीं उसमें हिलेंगे, हम उनमें नहीं ज्वाइन होंगे। हमारे आवाज तो वर्ल्ड पीस, वी विल रिस्पेक्ट एवरीवन, वी आर कमिटेड टू वर्ल्ड पीस। तो जैसे हमने विजन डेवलप किया और वो विजन में हमने खुद को रखा, और वो कभी से कहां से चालू करेंगे? ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो लीडर चालू करे, कहां से चालू करे? जहां आप लीडर बॉस को तो देखेंगे बाद में, बहुत उसके लिए है कि उसको मालूम है क्या करना चाहिए, लेकिन हम हमारे से चालू करेंगे। जब मेरे हाथ में जो पावर है उसमें मैं चालू, आपको मालूम है कहाँ का आपका पावर है? आज मालूम है ना कहाँ का आपका पावर चलता है? मालूम है? मेरा तो पावर है ही नहीं। नहीं मेरी मस्ती की बात कर। अरे बाबा, इट्स अ मैटर टू स्टार्ट, वहां से भी कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे क्योंकि इनमें विजन नहीं है, विजन उनका कोई विजन नहीं। प्रॉब्लम में आगे वापस ड्रामा में आगे। पर्सनल बात करूं, अरे पर्सनल बात आपका कहीं ना कहीं तो हर एक आदमी का पावर खुद के ऊपर तो। अरे आपके वो फैक्ट्री में कोई आदमी आता है कि झाड़ू वाला आता है कि नहीं? कोई नहीं आता है। घर में झाड़ू वाला आता है कि घर में आता है। तो उसमें पावर है ना? मैं नहीं देखता ना, मैं समझ अरे आप चाहे तो उससे झगड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते? झगड़ा तो किसी साथ में कर सकते हैं। अरे पर उसके ऊपर तो पावर है ना कि इधर झाड़ू मत निकालो, इधर झाड़ू निकालो, आप बोलेंगे तो। मैं ज्यादातर तो उसमें मगर कहीं ना कहीं आपने किसी से कुछ माल ले लिया, कुछ परचेज कर, आपका पावर है, सर्विस प्रोवाइड। अब तो किसी को पैसा उसी ने दिया है, उसके ऊपर पावर है, मेरा पैसा दो या मत दो। आप कम्युनिटी सोनी समाज के मेंबर है, सोनी समाज में आपका थोड़ा बहुत तो पावर है, मेंबर है, मेंबर झगड़ा करता है। सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके पास पावर है, कितना 500 पावर दिया। यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, एक सिटीजन ऑफ इंडिया को कितना पावर है? 10 रुपए का लेटर लिखो, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखो। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, अपना इंडिया का आपका विजन क्या है, का प्लान क्या है, 10 रुपया अटैच किया, लेटर भेजो, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जाओ आगे। ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 10 रुपये भेजो, सबको आंसर देना पड़ेगा, पावर है। हाँ, आप तो मैं ज्वाइन कर दिया हूं, इसलिए मैं मेरे को मालूम नहीं है कि क्या पावर है। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पावर क्या है। आप हिंदुस्तान में कोई भी सरकारी आदमी को, डिपार्टमेंट को बोलेंगे आपने क्या डिसीजन लिया, क्यों डिसीजन लिया, कितना खर्चा किया, मुझे जानना है, उनको देना। हम लोग ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, मैंने भारत के सब बैंक्स को लेटर लिखा, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदा, क्या भाव में खरीदा, किसके पास खरीदा, उसका टेंडर क्या है, हमको बोलो, सबको जवाब देना पड़ेगा, इधर इधर बैंक से, इधर से, उधर से, सबसे हेड ऑफिस सबका रिस्पॉन्स है, आना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, पावर है ना।
सिटीजन ऑफ इंडिया, पैन कार्ड अटैच करके भेज दो, देना ही पड़ेगा. People have to respond. So you know all the RTI का provisions. एकदम सिंपल सर, एकदम सिंपल, एक सिंपल फॉर्मेट लेटर लिखो, खुद में लिखो ये RTI का ये एक्ट के अंदर मांग रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, मेरे को नहीं दिया तो मैं एफिलिएट का मुझे नंबर दो, मैं उसमें कंप्लेंट करूँ. कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, आप बोलो कि मेरा ये मेरे को पर्सनल इम्पैक्ट कर रही है बात, मैं भी हूँ सॉफ्टवेयर वाला, मुझे जाननी जरूरी है. क्या हो रहा है, ज्यादा पैसा नहीं दे रहा ना सरकार का पैसा, पावर आपके पास बहुत नॉलेज. हाँ तो मैंने दे दिया तो सर कभी ये बोले ना सर कभी RTI पे रखना ना सर, आई वांट टू नो दैट. नहीं रियली ये सबके लिए हर चीज के लिए काम है. मैंने एक टाइम ये RTI यूज नहीं किया था. हाँ तो किधर से मेरा ये कार लेके गया था उधर टॉल वाला, तो मैंने भी वो नेट बेट में जाके कंप्लेंट कर दिया, तो उधर से आया लेटर पूरा. अच्छा कि भाई योर कार वाज टेकन अवे, ये वो पूरा डिटेल. वो साइन लेने के लिए उसने 4 धक्का खाया मेरे से. पहले मैंने ना बोल दिया, मैं साइन देगा ये तो ना झूठा है. 4 धक्का उसको खाना पड़ा, फिर वो साइन लेके गया. वेरी राइट. वो एक्चुअली वो डिटेल में मालूम पड़े ना तो कितने सारे लोग अफेक्ट होते होंगे कि आपने तो एक लेटर ही वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में प्रोवोक समझ के डाल देना है, फिर ऑटोमेटिकली सब काम पे लग जाएंगे. कहना है बेटा, मेरे को तो कितने लोग भी फोन करने लगे, सर आपने क्यों ये पूछा, बोला ना पूछा, फिर तो इतना ये क्या इतना तुम्हारा कुछ बंद हो गया. उल्टा बड़ा फाइल हो गया. ब्यूटीफुल है RTI. Again, this has come that lack of awareness everywhere. So problem of water, lack of awareness. Problem of war, lack of awareness. हमारे rules, हमारे rights, lack of awareness. Everything is main point is lack of awareness. आम लोगों को या हम लोगों को कितनी बातें मालूम ही नहीं. We don't aware about this. If we are aware, we can do so many things. Yes, I can do so many things. Yes, if you are aware. There are a lot of RTI sessions happening. मतलब आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना, हमारे दोस्त है वो तो फ्री में RTI करके देते हैं. हाँ? आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है उनके पास जाओ. अरे वाह. वो नाम और नंबर दे देना, इधर ही लिख दो, सब लोग देंगे. नाम और नंबर. Actually, आपने जो भी अपना जो meditation का जो WhatsApp पे बना है ना, ग्रुप ये उसमें lots of information. I wish that we should get lots of information या brief about all the important things. At least we can forward to few people. Yeah, why not? How many we can? So we can start in that way. Yeah. Main thing is to contribution. हम कैसे और वो क्या कर सकते हैं. True. आप उसमें मुझे WhatsApp पे डाल देना रतिकला को. Please give the information on the RTI. क्योंकि अभी वो तो काफी बंद हो गया है, पर्सनल मैसेजेस एंड जोक एंड दैट वीडियोस वो सब क्लियर हो गया है. इट्स वेरी कूल नाउ. So there should be lots of information. इस टाइप की जो चीजें नेसेसरी है, इससे हम हमारी खुद की और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं. ओके. ये ब्रेन मॉडल का भी भेज सकते हैं. There are a lot of videos available. मैंने लिखा है वो, मैं पूरा भेजूंगी अभी. बट जो आप लिखोगे उसमें डिफरेंस होगा. Sure. आप लिखिए. No, you can share what we discussed. एक मुझे तो मैं क्या भी लिख सकती है, क्या हमने आज देखा, क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या समझा, ये जो शेयर, so that there are not many people who will not come, they can benefit from it. In full session, I got a touchy thing that state of mind, that 5 state में mind रहता है. Yeah. And this can change so many things in my life. Yeah. These 5 points. Right. Now I'm aware of each and every moment. I should not go in drama. Yeah. Right. It's my responsibility to become again recreate my vision. Correct. Whether it is Dev's problem or my hubby's problem or other servant का भी problem हो या my business problem. Correct. और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे समाज में, पूरे दुनिया में ड्रामा में रहते हैं कि हमको क्या हमको क्या करना है. Unknowingly actually. और दूसरा एक कहूँ कि हम जो विजन बनाते हैं उसको आर्टिकुलेट नहीं करते हैं. आर्टिकुलेट मतलब ठीक से हम विजन को प्रॉपर नहीं होता है. तो हमको क्या करना है, देखिए एक हमने विजन बनाया, तो मैं थोड़ा सा अपना विजन लिख देता हूँ. साकार विजन क्या है? साकार विजन is to create world peace. ठीक है? To create world peace. Yes. Create world peace. दुनिया में शांति. कैसे करेंगे? विश्व शांति. By empowering. We will empower. Whom we will empower? Individuals. ऐसे लोग, आप लोग, हम सब will empower individuals and organizations.
ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन, जो काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं? एंगेज्ड इन क्रिएटिंग जॉय, पीस एंड लव। मैंने हमारे ऑफिस में रूल बनाया है, मेरे घर में रूल बनाया है, हर जगह मेरे दोस्तों में रूल बनाया है। किसी की भी कुछ भी कंप्लेन करनी है, किसी भी कुछ भी बुराई करनी है तो मेरे से बात करो, मैं उसको एम्पावर नहीं करूँ। आप सुनते हैं ना सबके गंदी गंदी बातें सुनते हैं, आप उनको एम्पावर कर रहे हैं। झगड़े की बात सुनते हैं ना, एम्पावर मुझे सुनना ही नहीं। किसी के बारे में अगर कोई अच्छा कह सकते हो, भला कह सकते हो, किसी की अच्छाई की बात कर सकते हो तो कहो। मेरे बच्चे आते हैं स्कूल से, पापा आज इसने मुझे धक्का मार दिया, आज इसने मुझे ये, मुझे नहीं सुनना। मुझे ये कहो कि स्कूल में अच्छा क्या हुआ, क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं ना ये बातें तो आप उसको एम्पावर कर रहे हैं और उसको एम्पावर कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि दुनिया में अशांति के लिए अशांति एम्पावर कर रहे हैं। तो लोग अशांति की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? उनको बोलो कि यहाँ पे आओ, भाई सिखाते हैं ना, मेडिटेशन में आओ। मतलब मैं अशांति में एक्सपर्ट नहीं हूँ, और संडे को आओ, हमारे हैं एक्सपर्ट, वो खुद इतने अशांत हैं, उसको सब मालूम है, तो उनको आप आइए और सुनिए। आप मत करो, बोलो मुझे कुछ सुनाओ ही मत, जितना भी आपका प्रॉब्लम है समझ गया मैं, मुझे बस सुनाओ। क्योंकि मैं आप है एक्सपर्ट है पूछा नहीं है ना, बोल मुझे नहीं बोला ये मार ये सुनते हैं ना तो अपना बोलना है कि वैसा भी बोला जाती है। अब हां हम भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके साथ ड्रामा करने नहीं, अब हम लोग की बेचारा दुखी है, उसको हमने उसका बात सुनो। और कितनी भी सही बात हो, कितनी भी अट्रैक्टिव हो, आप बोलो। और लोग क्या करते हैं, आपका अटेंशन लेने के लिए पूरा ड्रामा मसाला पाव भाजी डाल के एकदम लसीन लुच्चे, अरे ऐसा हुआ था, अच्छा, तो फिर आप आ जाते ना बात में, तो उसको आप एम्पावर कर। आप देखो बोलो कि भाई ये नहीं, ये आपको पाप लगेगा। अभी भी पाप लगेगा, नहीं सुनेगा तो पाप लगेगा। नहीं, वो छोड़ो, उसको कुछ मालूम नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसा बोला जाएगा, नहीं तुम नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? इधर आओ ना, इधर लेके आओ। संडे बोला अगर आपको सुनाना ही है, संडे आओ मेरे साथ। मेडिटेशन के अलावा बाकी सब कुछ होगा इधर। नहीं आओ, आप नहीं चलेगा, आप लेके आओ। मैं अशांति में एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो आप नहीं, मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, आप मेरी चिंता ही मत करो। मुझे आपसे ज्यादा भाभी साथ नहीं, उसको मालूम है, उसको मेरा सब मालूम है, बहुत कैपेबल है वो आप चिंता ही मत करो। तो ये हम कमिटेड हैं कि वी विल एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपकी जिम्मेवारी हो, आप एक भी ऐसे इंडिविजुअल को एम्पावर नहीं करेंगे जो अशांति, झगड़ा या दुख क्रिएट करना चाहते हैं। और खुद को कैसे शांत करेंगे? इधर आप पहले इतना काम कर दो, और आप खुद को भी जब एवरी मोमेंट, इन्होंने कितना बढ़िया बोला, एवरी मोमेंट आपके पास चॉइस है कि ड्रामा में जाए या विजन में। एवरी मोमेंट चॉइस। अब ड्रामा में जाना तो अच्छा ही, और कैसे एम्पावर करेंगे खुद को कि ये मेरा विजन है, हम वर्ल्ड पीस करेंगे। ठीक है, अभी हम शांति से बैठेंगे और वॉर हो गया और आप बोलेंगे ड्रामाबाजी करेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं, तो भी आपको वो वॉर से लेना देना होता ही है। तो आप उसके वॉर के पक्ष में खड़े हैं। अपना अगर यू आर अगेंस्ट अस, और वो विजन अपनी रियलिटी से अलग होता है। Of विजन course. विजन होता है, रियलिटी में वो विजन लेके जीना इज नॉट इजी। नहीं, रियलिटी आपका विजन है, चलो आपको शांत रहना है, आपको झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करना, लेकिन आप जहाँ खड़े हो ना वहाँ इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं कि यू कैन नॉट गो टू योर विजन। आप सिर्फ समझ सकते हैं, लेकिन आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। द सिचुएशन अराइज लाइक दैट, तो आप वो कैसे पहुंचोगे वहाँ तक? बोलो। देखिए, विजन का मतलब मैं समझता हूँ। हाँ, इट्स नॉट सो इजी व्हाट यू आर टॉकिंग, अकॉर्डिंग टू मी आई फील। I get it. It is not easy. Not easy at all. Really great things in life are not easy. Standing first in college is it easy?
What's trying? We will fail. It's worth trying. If you fail doing something great, you're still worthy of respect. मैंने लास्ट टाइम कहा था, कुछ ऐसी बातें हैं जो करते करते आप जीत भी गए ना, तो शर्म की बात है। जो करने में आप सफल भी हो गए ना, तो शर्म की बात। ऐसी बातें होती है, जैसे आपने अपने परिवार को नीचा दिखाना चाहा, जिनसे प्यार करते हैं उनसे झगड़ा करना चाहा, तो झगड़े में सामने वाला हार गया, बोला ठीक है भाई तू जीती, माफ करो, आपने उनको झुका भी दिया। ऐसी बातों पे लड़ रहे हैं हम, कैंपेन पे खड़े हैं कि वो बात में अगर आप जीत भी गए तो शर्म की बात है। और कुछ ऐसी बातें होती है वो करने में हार भी गए तो गौरव की बात है, तो बहुत बड़े गौरव की बात है। जो लोग जानते हैं, समझदार हैं, वो आपकी हार को भी सलाम करेंगे। क्या आपने कहा कि घर में पीस होगी, दुनिया में शांति होगी, सिचुएशन ऐसी आ गई, आप लोगों ने समझा आप हार गई, आप चुप रह गई, आप तुमने हार स्वीकार कर ली, वो हार भी बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ा गौरव। तो खुद के लिए, दूसरों के लिए, मतलब ये तो हार गई। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी दूसरा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि वो हार बहुत गौरव जैसी है। आप जो लोग कहते हैं आपको हार गए और आपको कहते हैं आप हार गए, मतलब शर्म की बात है, उनकी बातों पे बच जाओ। उनके विचारों का कोई मूल्य नहीं है, पागल है, मूड है। जो भी समझदार आदमी है वो आपको कहेगा कि आप अगर ये विजन करते करते आप हार भी गई, बहुत बड़ी गौरव की बात, इससे बड़ा कोई गौरव नहीं। तो उनको छोड़ो, तो वो कहेंगे आप हार गए, बोले हाँ मैं हार गया। ये विजन है मेरा, पीस हो जाए तो मैं नहीं कहता हूं ये एकदम इजी हो जाएगा, वर्ल्ड पीस हो जाएगी, नहीं होगी, पर इसमें प्रयास कर लेना ये भी कितनी बड़ी बात, इससे कोई बड़ा गौरव है। आप सुबह 10:30 को आएंगे यहाँ, आपने ये सोच लिया कि दुनिया में पीस होगी और मैं 1 घंटा शांति से बैठूंगा, उसके लिए मैं जा रहा हूं। यह आपका प्रयास है और कोई बड़ा प्रयास नहीं। तो हम शांति से बैठेंगे और जैसे डॉक्टर लालका ने कहा, हमारी शांति से पूरी दुनिया पे असर हो रही है, वाइब्रेशन पे असर हो रही है। आप हमें पता चले या ना चले, और हो रही है, तो इसका अनुभव करेंगे। थोड़ा सा म्यूजिक लगा देता हूँ and then we sit down for the meditation. महावीर स्वामी और साईं बाबा ने कहा है ना, सब बड़ा इंसान कौन है? सबसे बड़ा इंसान जिसमें बदला लेने की ताकत हो और फिर भी वो माफ करे। Brilliant. दुनिया में सबसे बड़ा इंसान। Very true.